नमस्कार दोस्तों। Unfortunately, today become the black day of parliamentary democracy in India. The way in which anti-farmer law has been taken up in the parliament today, Rajya Sabha today, is totally unacceptable and condemnable. You are all aware that beyond the political limit, entire farmers associations and farmers organizations are in the street. They are fighting for their cause. They are fighting for their livelihood. Without bothering the COVID-19 pandemic, they came out from their home and they are in the street requesting the government to withdraw this anti-farmers law. It is the duty of the opposition party to raise the concern of the farmers during this discussion, bill discussion. What we witnessed in the Rajya Sabha today, I think you are all be there. From opposition side, we moved motions which has been assured by the chairman that you will get a chance to present it and speak on it. I moved a resolution. This farmers anti-farmer bill has to be sent to select committee for more deliberations and more discussion, especially from the farmers organization, and to come back with that suggestions. But government did not listen. We didn't understand why this hurry. Why are they bulldozing this anti-farmers laws without any patience? They are not listening the voice of the farmers. They are not listening the voice of the political parties. They are not listening the voice of the parliament, especially opposition parties' voice. When finally discussion was over, at the time of 1 o'clock, you know, usually the parliament, Rajya Sabha's time nowadays is 9 o'clock to 1 o'clock. As per the rule, if you want to proceed beyond 1 o'clock, you should take case consent from the house. Therefore, Honorable Parliamentary Affairs Minister moved. This house has to be extended till the bill has to be passed. Then usually what will happen? Then usually it is the duty of the deputy chairman to take the sense of the house, whether the house is agreeing for extension or not. From opposition side, our Chief Whip Jairam Ramesh requested the government, anyway discussion has been completed, minister can reply tomorrow and we can pass it tomorrow. We can take up these amendments and also tomorrow. But without hearing this, without taking the sense of the house itself, within a second, deputy chairman went for passing this bill. We didn't see such a practice from any of this house so far. We didn't understand such a movement from deputy chairman, why it has happened, for what reason he has done that. Then quietly, the people who move resolutions become upset. That is quite natural. We have to understand, we all moved the resolution. It is the right of a member who moved the resolution has to ask a division for that motion. If the government has the majority, they can pass, they can defeat this motion. But that chance also has been denied.
the fundamental right of a member have been curtailed. Why it is happened? The Treasury bench came today with a prefixed mind. They are not ready to listen the agony of the farmer. They are not ready to listen opposition voice. They are not ready to have a division in this farmers' bill also. After that, quite naturally, the member became upset. Everybody went to the well of the house because it is not happened before at all. And surprisingly, I had been witnessed that BJP members going to the deputy chairman and they are whispering with the deputy chairman. Not the parliamentary minister is gone every time, has went every time. But apart from parliamentary minister, BJP leader Bhupendra Yadav also whispering into the ears of deputy chairman. What conspiracy has been transferred? This is quite unacceptable parliamentary democratic procedures. In parliamentary democracy, government has the way, we are agreeing, but opposition has the say. If you are not hearing the opposition voice, then how can you strengthen the parliamentary democracy? Now I witnessed the press conference by Honorable Rajnath Singh and 5 of the ministers. They are totally justifying deputy chairman's actions and attitude. That was also very unfortunate. We expected a decent reaction from senior ministers. At least they should have condemned the practice given by deputy chairman. But they are also justifying deputy chairman. They are also justifying the procedure false. That means that this was a conspiracy. Today's entire episode was a conspiracy built by BJP leadership. They want to suppress the voice of farmers in the house. They want to bulldoze this anti-farmers law without any delay. Anyway, Congress party and other opposition party not going to leave this issue. They are talking about this bill is not against farmers. You have to understand. Your own cabinet minister resigned by agitating this bill. Your own RSS affiliated Farmers Association is agitating against this. Around more than 250 farmers organization beyond the political limit is agitating throughout the country. You are not in a position to convince your own cabinet minister. You are not in a position to convince your own farmers organization. You are not in a position to the people of the country. Then you are now telling that this is farmers friendly bill. Who is going to believe these things? Therefore, this farmers, anti-farmers attitude should be exposed. We will fight it out. We will be with farmers. Definitely, we are moving a non-conference motion against the deputy chairman also, because it has to be clarified. Therefore, the parliamentary democracy has to be saved. That is what we have done today. शुक्रिया वेणुगोपाल जी। जिस संसद की चौखट पर शीश नवाकर मोदी जी ने संसद में प्रवेश किया था, आज मोदी सरकार ने उसी संसद को शर्मसार कर दिया। 3 काले कानून लाकर मोदी सरकार ने देश के किसान और खेत मजदूर के पेट
और पीठ में एक तेज धार वाला खंजर घोंप दिया है। 73 वर्षों में शायद ये सबसे अंधकारमय दिन संसद और इस देश के इतिहास में है, जब सत्तासीन मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने किसान, खेत और खलिहान पर एक सुनियोजित और षड्यंत्रकारी आक्रमण बोला है। हम याद करवाना चाहेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए लड़ा गया था क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुस्तान के साम्राज्य और हिंदुस्तानियों के अधिकारों पर कब्जा कर लिया था। अब 2020 का स्वतंत्रता संग्राम इसलिए लड़ा जाएगा कि आज के काले अंग्रेजों ने और एक अहंकारी शासन ने देश के खेत और खलिहान पर कब्जा करने का फिर षड्यंत्र किया है। याद रहे, अंग्रेज भी देश कब्जाते हुए ये कह रहे थे कि हम तुमको मुगलों से मुक्ति दिलवा रहे हैं। आज के काले अंग्रेज मोदी जी की ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये कह रही है कि ये कानून किसान पक्षधर हैं, उनकी रोजी रोटी, जमीन, आजीविका छीनकर। पूंजीपतियों को पूजने वाली इस पापी मोदी सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। पाप का पर्याय बन चुकी बाहुबली भारतीय जनता पार्टी ने आज हर संसदीय प्रणाली को तार तार कर दिया। संसद के समय के बाद संसद की अनुमति लिए बगैर, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, आप किस प्रकार से संसद की कार्यवाही चला सकते थे या किसी कानून को पारित कर सकते थे। पूरे देश ने देखा, आपने संसद के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स लगाकर सांसदों को अपने अधिकार का इस्तेमाल ना करने देकर, वोट ना डलवाकर, डिवीजन ना करवाकर, आपके अपने जो मित्र दल हैं वो भी कांग्रेस और किसान के साथ आ खड़े हुए थे, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो दूसरे मित्र दल हो। जब देखा कि अब बहुमत नहीं रहा तो फिर ध्वनि से, आवाज से, वॉइस वोट से जबरन ये कानून पारित करवा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के संविधान का पहला संशोधन लेकर आए थे ताकि जमींदारी प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो और किसान जमीन का मालिक बन जाए। आज के प्रधानमंत्री मोदी जी 3 काले कानून लेकर आए हैं ताकि किसान एक बार फिर से कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जमींदारी प्रथा का गुलाम बन जाए। दुर्भाग्य से राजनाथ सिंह जी और उनके मंत्री, जिन्होंने अभी अभी पत्रकार वार्ता की, वो देश के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र तोमर जी, राजनाथ सिंह जी, 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। पहला, जब अनाज मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान को एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? क्या एफसीआई 15.5 करोड़ किसानों के खेत में जाकर एमएसपी देकर आएगी, जो 40,000 मंडियों में भी खरीद नहीं कर पाती? और अगर बड़े बड़े पूंजीपतियों ने एमएसपी से कम रेट पर किसान की फसल खरीदी तो एमएसपी देने की गारंटी क्या है? आज भी राजनाथ जी और मोदी जी ने जवाब नहीं दिया कि अगर एमएसपी देंगे तो कानून के अंदर एमएसपी देने की गारंटी के शब्द क्यों नहीं लिख देते? सारे शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और आप कहते हैं कि किसान पूरे देश में कहीं भी फसल बेचकर आए। अरे 86% किसान तो 5 एकड़ से कम का है और 80% उसमें से 2 एकड़ से कम की भूमि का मालिक है। हरियाणा का किसान कलकत्ता जाकर अपनी फसल कैसे बेचकर आएगा? उसे तो मंडी तक फसल ले जाने की दिक्कत है। महाराष्ट्र का किसान हरियाणा आकर अपना गन्ना कैसे बेचकर जाएगा? हमारा बंगाल का किसान दिल्ली और दिल्ली का किसान अहमदाबाद और गुजरात का किसान राजस्थान कैसे जाएगा? राजस्थान का किसान कलकत्ता और केरल कैसे जाएगा? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं किसान का? यह षड्यंत्र है केवल बड़ी बड़ी कंपनियों को किसान के हक बंधक रखने का,
पर मोदी जी ये जान लीजिए, अब याचना नहीं, अब रण होगा, क्योंकि किसान और खेत मजदूर उठ खड़ा हुआ है और ये लड़ाई निर्णायक होगी। और जैसे भूमि मुआवजा कानून में राहुल गांधी जी, कांग्रेस और किसान ने मिलकर आपने मुंह की खाई थी, एक बार फिर ये 3 काले कानून वापस होंगे। अब पहले मैं प्रताप बाजवा जी से और फिर शक्ति सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो जिन्होंने आज संसद में ये पैरवाई की अपनी बात कहेंगे। मेहरबानी रणदीप सुरजेवाला साहब। देखिए, बेनू जी ने अपनी बात कही और उसके बाद रणदीप जी ने भी, और जो विशेष बात आज मैंने एज ए लीडिंग स्पीकर फ्रॉम द कांग्रेस मैंने बात उठाई, हमने तो सबसे पहले बात कही कि पहले तो तोमर साहब इस बात का आप जवाब दे दीजिए कि कोरोना के साथ 1 लाख लोग हर रोज बीमार हो रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ आपका आई बॉल टू आई बॉल इस टाइम एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, जो डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि किसी टाइम भी जंग शुरू हो सकती। तो हमने कहा 73 साल ये कानून नहीं आया, ये बता दीजिए जब पार्लियामेंट इन ऑपरेशन नहीं थी तो ये चोर दरवाजे से आपने ये जो ऑर्डिनेंसेस लेकर आए, जो आप बिल में तब्दील हो गए हैं, इसकी जरूरत इतनी जल्दी है थी क्या? और फिर तोमर साहब को ये भी मैंने पूछा कि ये बताएं कृपा करके, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो किसान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आप कितने स्टेक होल्डर्स से बात की? तकरीबन 245 किसानों की जथेबंदियां सारे हिंदुस्तान में जो आज सड़कों पर उतरी हुई, और सबसे ज्यादा ये जो एमएसपी की बात हो रही है, इसका असर ये टेलर मेड बेसिकली 1960s में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के लिए था। तो हमने कहा आपने किससे बात की? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपने कभी हमारे से जिक्र नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने, पंजाब वाले ने बताया कि जब हमें बुलाया, पहली दफा तो बुलाया ही नहीं पंजाब को, सेकंड दफा जब बुलाया तो वह उस एजेंडे में यह बात ही कुछ नहीं थी। तो आपने बात की, अकेली बादलों से बात की, और उन्होंने खुद आकर यह बात तस्लीम कर ली कि 3 महीने हम समझाते रहे, हमारे समझाने के बावजूद ये माने नहीं, और हम इस बात पर पहुंचे हैं कि ये एंटी फार्मर हैं, ये जो ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी, बादल जो आपके कैबिनेट में थे, हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने तो खुद मोहर लगा दी कि ये आपके ऑर्डिनेंसेस जो आप लेकर आ रहे हो एंटी फार्मर है। 3 महीने वो आपकी वकालत करते रहे बिना फीस लिए हुए, उसके बावजूद, और इसके बावजूद कि आरएसएस की जो स्वदेशी जागरण मंच है, उनका फार्मर्स की जथेबंदी है, उन्होंने खुद कहा कि ये अभी इतनी जल्दी मत कीजिए भैया, इस पर और लोगों से बात करने की जरूरत है। आरएसएस की बात नहीं मानी, उनकी बात नहीं मानी, हमारी बात इन्होंने कहां से माननी थी। और पंजाब का विशेष तौर मैं बताना चाहता हूं, ऑल पार्टी मीटिंग चीफ मिनिस्टर ने बुलाई, वहां फैसला हुआ कि ये एंटी पंजाब है। आप लिखो, चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी मोदी साहब को कि मोदी साहब, हम चाहते हैं कि आप हमें सभी को टाइम दिया जाए मिलने का। चीफ मिनिस्टर को वक्त नहीं दिया। उसके बाद सारे पंजाब असेंबली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन किया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, किसी की बात नहीं पूछी गई। तो ये देखिए आप, जो असल बात है, हम भी सरकारों में रहे हैं, और मुझे पता है जब मैं 2009 से 14 लोकसभा में था तो शरद पवार जी हमारे एग्रीकल्चर मंत्री थे। हर दफा जब सीजन आना, उन्होंने कहना बाजवा साहब इस दफा मैंने कोशिश कर कर पंजाब और हरियाणा को बचा लिया, अगले साल एमएसपी वाला काम ये साल 6 महीने ही है, ये बंद हमें करना पड़ेगा। मैंने कहा जी वो क्यों? कहने लगा फूड कॉर्पोरेशन बहुत बड़े लॉस में, 35 से 40 हजार रुपया लॉस है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हर साल का, और कुमुलेटिव लॉस है उसका अब 4 लाख करोड़ रुपया। ये सारी के सारा जो मंसूबा है, ये जो पैकेजिंग की गई है, ये बेसिकली फूड कॉर्पोरेशन को बंद करने की है। क्योंकि 2015 में आप जानते हैं एक कमेटी बनी, शांता कुमार जी की नाम पर कमेटी थी। शांता कुमार जी कौन है? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं इनके, हिमाचल के भाजपा के। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि ये घाटा तभी बंद होगा अगर आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बंद करोगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब बंद होगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वैसे खत्म हो जाएगी। अब
मोटी बात इसमें एक है कि 55 साल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के हमारा पानी इस्तेमाल किया, हमारा सॉइल इस्तेमाल किया, हमारे किसानों को इस्तेमाल करके सेंट्रल पूल में हम हर चीज अपनी देते रहे। आज पंजाब सेमी डेजर्ट बन गया, हमारा पानी का स्तर सारा बिगड़ गया। मैंने आज बताया कि कैसे बठिंडा से बीकानेर को जो ट्रेन चलती है, क्योंकि जो कॉटन हम देते हैं सेंट्रल पूल में जो खरीदी जाती है उसमें 15 स्प्रे होती हैं एक में, और पेस्टिसाइड के कारण लोगों में बीमारी बहुत सारी बढ़ रही है। तो आज आप वही सिचुएशन है जैसे जो बुजुर्ग नालायक बच्चे होते, जब बुजुर्ग हो जाते हैं माता पिता, वो तो समझते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाया, मेहनत की, काबिल हो गए, हमारी देख रेख करेंगे। और जो नालायक बच्चा होता है वो करता क्या है, वो समझता है कि यार एक बेडरूम में ये दोनों पड़े हुए हैं, काम तो अब इनके पास है कुछ नहीं, तो वो कहते हैं नौकरों को कि इनका सामान उठाओ तो भाई गैराज में इनका बस्तरा लगा दो। ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों का अब ये बिस्तरा उठाकर गैराज में लगाना चाहते। तो ये आप समझते हो कि किसान हमारे पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के मान जाएंगे? तो ये बेसिकली डिसबैंड करने का प्रोग्राम है। एफसीआई डिसबैंड किया जाए और लोगों को छोड़ दिया जाए। और इसीलिए ये बैक डोर से अडानी और अंबानियों को ला रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट बाहर निकल जाए, ये प्राइवेट जो है प्लेयर्स अंदर ले आए। और ये सा सुखबीर सिंह बादल खुद ने ये बात कही कि जैसे जियो है, रिलायंस का टेलीफोन, वो जितनी देर कंपटीशन रहा बहुत सस्ते रहे, जिस दिन कंपटीशन खत्म कर लिया सारे टेलीफोनों के बिल 5 गुना बढ़ गए। तो यही इन्होंने करना है, यही खदशा है किसानों का। और इसीलिए किसान किसी पार्टी के कहने पर नहीं, उसके बिना बाहर निकले हैं। और हमें इस बात का यकीन है कि ये जितना मर्जी ड्रामा करते रहे, लोग समझ चुके हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शेप में आ रहे हैं। और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और बाकी हिंदुस्तान का किसान जितना है वो ये इनके ये षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देगा। तो मैं इतने कहना चाहता हूँ। साथियों, बहुत अच्छी तरीके से वेणुगोपाल जी ने, रणदीप भाई ने, बाजवा जी ने, राजीव सातव जी ने बात रखी है। मैं चंद बातें सिर्फ आपके पास रिपीटेशन ना हो उस तरह से रखने की कोशिश बहुत कम लफ्ज़ों में करूँगा। हमारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जब देश आज़ाद होने के बाद हमारा संविधान बना, हमने ब्रिटेन पार्लियामेंट पे, वेस्टमिनिस्टर पैटर्न पे, हमारी संसदों में, हमारी विधानसभाओं में प्रोसीजर होगी, ये स्वीकार किया। और इसमें यह है कि जो भी प्रेसिडेंट पड़े हुए रहते हैं उसे बदला नहीं जाता है। कानून अगर नहीं है तो भी प्रीवियस स्पीकर्स के डिसीजन फिर वो एक कानून बन जाते हैं। आज क्या हुआ सदन में, क्यों सदस्यों का आक्रोश इतना ज्यादा हुआ? 2 मुद्दे। एक, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है, बहुत सारे मीडिया के साथी संसद को कवर करते होंगे, आपने देखा होगा, हाउस का एक टाइम होता है, उसके बाद अगर टाइम बढ़ाना है तो सबकी सहमति होती है तभी टाइम बढ़ता है। एक भी सदस्य कह देता है कि टाइम बढ़ाने में सहमत नहीं हूं तो बहुमत के जोर पे या स्पीकर या सभापति की मनमानी से टाइम नहीं बढ़ता है। आज महत्व के बिल थे, 12 पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि आज टाइम मत बढ़ाइए, कल मंत्री जी जवाब दें, हम सवाल पूछें और सही बात हम जानना चाहते हैं और भी, इसलिए कल रखिए। पर एक डिक्टेटर जैसे कोई डिसीजन लेता है कि मैं आज ही मार डालूंगा, आज ही कर दूंगा, उस जिद के साथ टाइम बढ़ाया गया 1 बजे के बाद का।
जब आवाज रखने की, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की कोशिश की गई, अनदेखी हुई। पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठता है, सुनना पड़ता है, नहीं सुना गया। वोटिंग में राज्यसभा रूल्स में लिखा है, चाहे एक सदस्य भी खड़ा होकर कह दे कि डिवीजन कह दिया, फिर वोटिंग होती है ध्वनि वोट से नहीं, एक एक वोट गिना जाता है। आज पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के इतिहास में काला दिन है और सदियों तक ये बात याद रखी जाएगी कि कानून रूल्स होते हुए भी, क्योंकि सरकार को आज ही कर देना था, आज बहुमत भी नहीं था, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी चाहते थे कि अगर हमने वोट कर दिया, हमारी बात खुल गई तो फार्मर्स हमको छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए डिवीजन मांगने के बाद भी डिवीजन नहीं दिया गया। राज्यसभा टीवी चल रहा था, उसको रोक दिया गया ताकि लोग ना देख पाए। आवाज बंद, बाहर से फोर्स को बुलाया गया, सदस्यों के ऊपर जोर जुल्मी की गई। हाथ नहीं लगाते हैं आज तक के राज्यसभा में कभी, ये अपर हाउस है, वहां सदस्यों के साथ बदतमीजी से फोर्सफुल व्यवहार किया गया। ये मैं गुजरात से आता हूं, ये मोदी मॉडल है। वहां डेमोक्रेसी खत्म की। जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा मावलंकर जी का स्टेट होने के नाते पूरे देश में नंबर 1 माना जाता था, उस गुजरात की सारी परंपरा खत्म की और वही मॉडल आज राज्यसभा में देखने को मिला है। जो कानून आया उसमें बड़ी बातें हुई है। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री है वो भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। मुझे शर्म आ रही है कि जिस गुजरात से महात्मा गांधी जी ने दुनिया को सत्य और अहिंसा सिखाया है, नाज हर गुजराती को होती है। आज मेरा सर झुक जाता है कि उसी गुजरात से आए हुए मोदी जी कहते हैं कि इस बिल में एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। आप सब जानते हो कि कानून होता है सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज। दोनों बिल में देख लो आप, सिर्फ एक जगह दिखा दे कोई मुझे कि जहां पे लिखा है कि फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में एमएसपी से नीचे का दाम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। है कहीं? ऑनलाइन सेलिंग होगी, एक लफ्ज नहीं लिखा है कि ऑनलाइन सेलिंग में अगर कोई फार्मर के पास से एमएसपी से कम दाम में खरीदेगा तो उसे सजा होगी। कोई सुरक्षा एमएसपी की नहीं दी गई है और ये कानून में स्पष्ट है। ऑनलाइन बिल दिख सकता है और फिर भी इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि एमएसपी है। इतना बड़ा झूठ कहीं नहीं देखा है। तो ये खेत खलियान में काम करने वाले, धूप में रहने वाले किसान का दिमाग तेज दिमाग होता है, एसी वालों से भी ज्यादा। और इसीलिए इस कानून को समझे हैं, रोड पे निकले हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, देश का कोना हो, क्योंकि वो समझदार है। गुमराह करना, भ्रमित करना कब सफल होता है? जब सामने वाला दिमागी कमजोर होता है। मोदी जी ट्वीट करते हैं कि फार्मर्स को गुमराह किया जाता है, भ्रमित किया जाता है। इस देश के, इस जगत के तात का अपमान है। यह कहना कि ये गुमराह हो गए इसलिए रोड पे है, इसका मतलब यह हुआ कि इनका दिमाग कम है कि दूसरे उसको गुमराह कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं मोदी जी इस देश के किसानों की माफी मांगे। आज रक्षा मंत्री राज्यसभा के सदस्यों के ऊपर अटैक करने के लिए, विरोध दल पे अटैक करने के लिए सीना तान के आ गए। रक्षा मंत्री जी
हम पे अटैक करने से पहले मेरे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए हैं। जाइए करिए चाइना पे अटैक। आपका जो डिपार्टमेंट है रक्षा मंत्रालय, उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, उनका जवाब तो दे दीजिए रक्षा मंत्री जी। पहले अपने डिपार्टमेंट के ऊपर खड़े हुए सवालों का जवाब दो, फिर विरोधी दल पे अटैक करो। इस दोनों कानून में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर, उनको सिविल कोर्ट का पूरा पावर्स दे दिया गया है। और एक फार्मर बड़े लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और प्रॉब्लम होगी तो कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट नहीं, पहले उसको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, फिर कलेक्टर के पास अपील, और वहां कुछ गड़बड़ होती है तो सेक्शन 18 में कह दिया कि आप सरकार, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर उसके खिलाफ सूट नहीं फाइल कर सकते, आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो। माने फार्मर का गला भी काट लो और फिर कोर्ट भी नहीं जाने दो। मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही न्यायाधीश। ये ऐसा काला कानून है जो किसान को बर्बाद करके छोड़ेगा। पर हमारे वहाँ कहा जाता है, भूख्या जनोनी जठराग्नि झाग से, खंडेरनी भस्म तणी न लाद से। जब ये आवाज उठेगी इस देश के आम आदमी की, वो सल्तनत में बैठे हुए सुल्तान मोदी जी, इनकी हाय आपको खा जाएगी। अभी भी सुधरो, वक्त है, समझो और इस काले कानून को रोको, वरना पब्लिक है, सब जानती है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके सवाल लूं, राजीव सातव जी ने आज इस विषय पर राज्यसभा में अपनी बात भी रखी और वो स्वयं किसानों के नेता हैं। संक्षिप्त में वो अपनी बात। सभी आदरणीय नेताओं ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि पिछले लोकसभा में ऐसा ही एक काला कानून लाने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा हुई थी और ऐसा ही एक काला दिन पिछले लोकसभा में भी लाने की कोशिश उस वक्त हुई थी। भूमि अधिग्रहण का कानून उस वक्त मोदी सरकार ने लाने का प्रयास किया और उस वक्त लोकसभा में खड़े होकर मोदी जी ने इसकी बड़ी प्रशंसा की, बड़ी तारीफ की। उसके लिए इतने ही ट्वीट्स उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने किए थे। और उसके बाद जो दोनों सदनों की कमेटी बनाई गई उसका भी मैं मेंबर था, कई सारे सदन के साथी उसमें मेंबर थे। और बाद में भूमि अधिग्रहण विधेयक का क्या हुआ आपको पता है। ऐसे ही बात इन कानूनों के बारे में भी होने वाली है। उस वक्त तो सदन की कमेटी बनाई थी, इस वक्त किसान ही इस कानून का विरोध कर रहा है और किसान ही मोदी सरकार को आने वाले समय में सबक सिखाएगा। लेकिन किसान का दर्द और किसान का दुख, जो सरकार है, इस सरकार के मुखिया ने ना कभी खेती की है, ना इस सरकार के कृषि मंत्री के नाम पर कोई खेत जमीन भी है। इसलिए इनको किसान के दर्द के बारे में, किसान का जो परेशानी है उसके बारे में क्या पता है। और ऐसे जो अभी शक्ति जी ने जो बात कही कि जिस प्रकार से प्रोसीजर को पूरी अनदेखी करने का प्रयास हुआ, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का मॉडल है। ऐसे ही सदन में, हर सदन में, गुजरात के असेंबली में ऐसा होता था। कभी विपक्ष के नेता को ही सस्पेंड करने की बारी होती थी, मीडिया को अलाउ नहीं करने की बात होती है। ऐसे ही ये कोशिश अब दिल्ली में राज्यसभा तक आ पहुंची है। आज के लिए, ये लोकशाही के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये काला दिन था। बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस यू आर वेलकम टू आस्क। मैम, राजनाथ सिंह जी इतने हक्के बक्के और चकाचौंध उस सवाल से हो गए कि वो बगले झांकने लगे। राजनाथ सिंह जी, आप बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, पर कम से कम झूठ और बरगलाने की कोशिश बंद कीजिए। आज आप कानून ला रहे हैं मंडी को खत्म करने का।
मंडी नहीं होगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा कहां और कैसे? और हम आपको चुनौती देते हैं, मोदी जी को भी और राजनाथ जी को भी, अगर आप किसान पक्षधर हैं, अगर आपकी दुर्भावना नहीं, अगर आप खेती को पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर नहीं बेच देना चाहते, तो अब लिख दीजिए, अब लिख दीजिए कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना अनिवार्य है। किसान अपने आप ठीक हो जाएगा, सारे विरोध खत्म हो जाएंगे। इसलिए झूठ बोलकर, बरगला कर, बगलें झांक कर बात को मोड़िए मत। हम चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, नरेंद्र तोमर जी को, राजनाथ जी को और मोदी सरकार को। आज लिखिए कानून के अंदर कि हर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना अनिवार्य है, और अगर कोई नहीं देगा तो उसे सजा मिलेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी सरकार लेगी। ये 3 बात लिख लीजिए, अपने आप किसान संगठन अपना विरोध वापस ले लेंगे। लिख के देखिए। आदरणीय मित्र, ये लुटेरों और कमेरों की लड़ाई है। लुटेरों के साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी। किसान, खेत मजदूर, हमारे अनुसूचित जाति पिछड़े वर्गों के भाई, मंडी मजदूर, छोटा छोटा मंडी का दुकानदार, वो कमेरा वर्ग इस तरफ खड़ा है। कांग्रेस कमेरों के साथ खड़ी है, मोदी जी लुटेरों के पक्षधर हैं। ये जैसा मैंने कहा, अब याचना नहीं, अब निर्णायक रण होगा, और इस रण का अंत जब तक नहीं होगा जब तक ये तीनों काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। धन्यवाद। बारह अपोजिशन पार्टी साथ रही, क्योंकि एक ऐसी चीज थी जो इस देश के लोकतंत्र के इतिहास को कलंकित करने वाली थी। अब 12 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर आपस में मिलेंगे, बात करके आगे का जो हाउस का जो डिसीजन होगा, हाउस में कैसे आगे हमें काम करना है, वो कल स्ट्रेटेजी तय करेंगे। गांधी स्टेचू के सामने भी हम रह के इस बात को उठाएंगे। वहाँ पे हमने उप सभापति जी ने जो किया है, हालांकि मैं गुजरात से आता हूँ और जानता हूँ कि वो तो स्क्रिप्ट दी जाती है, और वो वहाँ उस चेयर का भी मिसयूज गुजरात में हुआ था और यहाँ भी हो रहा है। पर उनके खिलाफ भी हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन 12 पॉलिटिकल पार्टी ने डाला हुआ है, और हाउस की स्ट्रेटेजी 12 पॉलिटिकल पार्टी, और मैं तो और पॉलिटिकल पार्टी को भी आह्वान करता हूँ कि ये वक्त इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है। आइए आप भी इसमें जुड़िए, क्योंकि इस तरह से सिर्फ हिटलर ने जैसे संसद को जला दिया था और जल्लाद बन के डिक्टेटर बना था, इस देश को उस रास्ते पे हम नहीं जाने दे सकते हैं। ये हमारा देश है। और पॉलिटिकल पार्टीज, और मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के साथ रहे लोग भी अपने अंतरात्मा को टटोल के पूछे कि क्या ये सही है कि डिवीजन नहीं देना, हाउस का टाइम मना करने पर भी बढ़ा देना, और इस तरह का कानून जो किसान को बर्बाद करके छोड़ेगा, पास करना क्या सही है? अपने अंतरात्मा को पूछे। थैंक यू।